देखती आंखों सुनते कानों, एल्फ्रेड गिल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 711 और शो का टॉपिक है साले 9 2021 की सच्ची और अच्छी बातें। साले 9 2021 की सच्ची और अच्छी बातें। तो सबसे पहले जो तलावते कलाम पाक है, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 40 से 43 आयत तक पढ़ूंगा। 40 से 43 आयत तक पढ़ूंगा। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। खुदाम जी यीशु मसीह के मुतल्लिक बहस छिड़ गई कि वाकया यही वो नबी है या यही वो मसीह है जिसने आना था। और उन्होंने कहा ये मसीह है, और उन्होंने कहा ये मसीह है। और बाज ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल, कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा जहां का दाऊद था। चूंकि वो दाऊद की नस्ल थे और यही पेशगोई थी, क्योंकि वो दाऊद जहां से दाऊद था। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो। आमीन। तो ये था आज का खुदावंद के पाक कलाम से जो हवाला बाइबल मुकद्दस से खुदाम यीशु मसीह के मुतल्लिक और आज के मुतल्लिक जो आज का साले 9 का पहला दिन है। गो पाकिस्तान या एशिया में तो शाम हो चुकी, लेकिन यूएसए में अभी तो दोपहर हो गई है, 2 बजने वाले। लेकिन हमारे लिए तो आज है नया साल। और आप सबको जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं जहाँ जहाँ भी है, यूएसए में, यूएसए से बाहर हैं, जहाँ भी मेरा शो देखते हैं सुनते हैं, आप सबको फिर एक बार 2021 की नया दिन नया साल मुबारक। और खुदावंद आपको इसी तरह ये सारी खुशियां हमेशा, जैसे 2020 हम सबका बहुत अच्छा गया और 2021 भी इसी तरह खुशियां और बरकतों और फजलों का साल हो। आमीन। तो पहले कुछ पंजाबी का सादक बरियाम साहब और उसके बाद जो नहाल अनायत गिल पंजाबी नवे साल दे मुतल्लिक ते सादक बरियाम साहिब दी दुआए बरियाम खानदान ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਿਆਮ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਦੁਆਏ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਾਸੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ 2020 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ तसल्ली देवे। आमीन। तो बहुत अच्छी दुआ लिखी है सर जी, बहुत खूबसूरत नवें साल दी पंजाबी च तुसा दुआ लिखी है। बिल्कुल दुआ बहुत खूबसूरत है। बे औलादा नूं औलाद भी दवे खुदा 2021 च जेड़े पिछे रह गए ने जिंदगी च दौड़ च कोशिश करन ते अगे वध सकदे ने, जिन्हां नूं दुख तकलीफां ने बीमारियां ने किसी भी हवाले नाल ते खुदा उन्हां नूं जेड़े ने वो जरूर हिम्मत ताकत दे ते सेहत दे। ते जिन्हां दे दुख तकलीफां सन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦਕ ਬਰਹਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਨਮ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਗੁੜਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੱਸਾ ਹੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਮਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੁੜ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਠ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਉਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਵੇਖੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਾਸ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁੜਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਨਦੀਮ ਅਜਮਲ ਅਦੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਵੇਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਤੇ ਲੋਵਾਂ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਔਖਾ ਵੇਲੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੰਗੀ ਤਸਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਤੇ ਲੋਵਾਂ ਕੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਵਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਹਾਲ ਅਨਾਇਤ ਗਿੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਫੀਆਂ ਜੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੈਂ ਤੂੰ ਜੁੜ ਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੈਂ। ਝੂਠੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੈਂ ਤੂੰ ਜੁੜ ਕੇ, ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੈਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਖ ਵੇਖ ਬੀਬਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਵੇਂ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹਾਲ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹਾਲ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਈਏ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ,
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਕੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਏ, ਆਖਦਾ ਏ ਸਾਰੀ, ਆਖਦਾ ਏ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਏ ਨਿਹਾਲ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਆਖਦਾ ਏ ਸਾਰੀ, ਆਖਦਾ ਏ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਏ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। एरेगल साहब, यूएसए से जिंदगी में सबक सिर्फ इतना ही सीखा है। अभी चंद अच्छी और सच्ची बातें उर्दू की होगी। जिंदगी में सबक सिर्फ इतना ही सीखा है, धोखा सिर्फ वो नहीं देते जिससे मौका नहीं मिलता। बिल्कुल भी उनको मौका ही नहीं मिला तो फिर दो, और जिसको मौका मिलता है वो पूरा फायदा उठाता है, वो धोखा देने से पीछे नहीं हटता। क्योंकि ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਗੁੜਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਬ ਹਮਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਾ नफरत ही नफरत मिली है, मुनाफकत ही मुनाफकत मिली है। तो यही बात है कि जिनको मौका मिल जाता है वो तो धोखा जरूर देते हैं, सिर्फ वो नहीं देते। सारी फिर दोबारा पढ़ूंगा। जिंदगी में सबक सिर्फ इतना सीखा है कि धोखा सिर्फ वो नहीं देते जिन्हें मौका नहीं मिलता, और जिनको मौका मिलता वो तो दिल भर के खूब धोखे देते हैं। उनको अपनी इज्जत और इस किसी बात का कोई दर्स नहीं होता, वो सिर्फ धोखे, और वो धोखा देते हैं और उसके बाद वो दूसरों के लिए रास्ता जो बुराई का खोद देते हैं। उसके बाद तू शाने यस्सु के हवाले से बहुत कुछ 2 शेर लिखे हैं। तू शान है अजमत नूर खुदा की, खुदा यीशु मसीह के हवाले से, तू शान है अजमत नूर खुदा की, तेरी हस्ती में कोई जवाल नहीं। बिल्कुल वो इंसान था लेकिन उसकी हस्ती में कोई जवाल नहीं। दुख तकलीफ सब कुछ हुआ, सूली भी चढ़ गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी तकलीफ, उसकी जिंदगी में किसी भी किस्म का कोई जवाल नहीं था। वो जैसे था वो नूर खुदा था। जैसे एरिक साहब ने लिखा है, तू शाने अजमत है नूर खुदा है, तेरी हस्ती में कोई जवाल नहीं, तू पर तू है रब्बुल जलाल का, पर तू है, तू बेटा है, तू पुत्र है, तू पर तू है रब्बुल जलाल का, कुदरत में तेरा कोई सानी नहीं। जाहिर है वो खुदा का बेटा है, कुदरत वाला है, कुदरत वाले का बेटा है, जुल्ले इलाही का बेटा है, जो आसमान और जमीन, तो फिर उसका तो कोई सानी है ही नहीं। भले इंसान तो था लेकिन वो इंसान होते उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ना उस वक्त ना उसके बाद। एक बहुत खूबसूरत पोस्ट है गिल साहब की, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल बात नहीं सुनते लेकिन बुरा पहले मान जाते हैं। और ये एक अजीब रस्म पड़ गई कि हम बात पूरी नहीं सुनते, हम उस बात का मतलब नहीं क्यों कही जा रही है, हम सुनने से पहले ही उसको बुरा मान जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ी कमजोरी है हम इंसानों की। काशिफ भट्टी साहब का हवाला है,
बाइबल मुकद्दस से तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। खुदा ज़ाहिर है खुदा यीशु मसीह खुदा के मतलब ज़बूर का हवाला है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामल शादमानी है। बिल्कुल तेरे हुजूर में, खुदा के हुजूर में कामल शादमानी है। तेरे दाहिने हाथ, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। बिल्कुल दाहिने हाथ में पूरी पूरी दायमी खुशी है। और हम बिल्कुल अगर हम उसको पूरी तरह माने, सजदे करें वाकई के वो खुदा और उसके दाने हाथ में, अक्सर हम दुआ भी करते हैं, खुदा बाप जी तू अपना दाना हाथ मेरे ऊपर कर, मुझे बरकत दे, मुझे फजल दे। और वो सारी बातें दायमी खुशियां जो है वो उसके हाथ में है। नदीम अजमल नदी अदीम का शेर है, जहां में साले नया कब किसी ने देखा है। बहुत खूबसूरत बात है, जहां में साल नया कब किसी ने देखा है, दुआएं देते गले मिलते लोग झूठे हैं। बिल्कुल अभी मैंने ये बहुत खूबसूरत जो पंजाबी कलाम था निहाल नहायत का, वो भी इसी में जो बात लिखी थी कि नवे साल दियां नवियां नकोर गल्लां, लेकिन असी नवियां नकोर ते गल्लां हम करते नहीं बातें। हम तो पुरानी जो जब से भी और संभाला, हम नए साल की तो मुबारकें भी देते हैं, लेकिन बातें सारी पुराने, किस्से सारे पुराने। हम नए साल में जैसे 2020 में थे, हम मुंह जुबानी तो बहुत कुछ कहते हैं, गले भी मिलते, लेकिन सिर्फ झूठ से मिलते, जो सच्चाई से नहीं मिलते। और यही नदीम अजमल अदीम दुआएं तो देते हैं, दुआएं तो देते हैं नए साल की, गले मिलते हैं लोग झूठे हैं। क्या बात है। उसके बाद डॉक्टर शाहिद मसीह शायद दुआएं खैर है नए साल की। आए खुदावंद आलम कायनात पर अपनी रहमत मोहब्बत की बारिश बरसा, ताकि नया साल हम सब के लिए मुबारक ठहरे। आमीन। बहुत अच्छी है। हम सब दुआएं तो करते हैं, मैं अक्सर शो में भी कहता हूँ कि खुदा बाप हमें नया साल, बहुत खुशियाँ, बहुत बरकतें, बहुत फजल, और दुआ भी आप सब नया साल के लिए करते हैं। आने वाला साल हमारे लिए खुशियों का साल हो। आए खुदावंद आलम कायनात को, कुल कायनात पर, कुल आलम पर, आलम कायनात पर अपनी रहमत मोहब्बत की बारिश बरसा। खुदा तो मोहब्बत की बारिशें बरसाता, लेकिन हम इंसान जो हैं, हम उन पर जो है अमल नहीं करते। हम अपनी बातें बनाते, हम खुदा के सामने भी चाहते कि मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, मैं की बात और झूठ की बात, हम उसको मनाना चाहते हैं, अपने अजीजों कारब को, दोस्तों को, जो भी हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी दुआ है कि बारिश बरसाता के नया साल हम सब के लिए मुबारक ठहरे। बहुत अच्छी दुआ। यूनस फ्रांसिस साहब यूके से नए साल के हवाले से, हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से दो शेर है। फजल फिर बेबहा दे दिया मुझे, बहुत बड़ा फजल दे दिया मुझे और आपको कि हमने नए साल में 2021 में फजल दे दिया, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, नई जिंदगी के साथ हमें जो फजल दिया, हम नए साल में दाखिल हो गए। साल फिर एक नया दे दिया है मुझे, एक साल फिर 2020 तो गुजर गया, हमें 2021 एक नया साल दे दिया है। क्या करता है वो सदा ही हिफाजत मेरी। बिल्कुल 2020 में हिफाजत की। मैं तो दुआ करता हूँ जितने साल मुझे जिंदगी दी, उन सारे सालों में बचपन से लेकर आज तक वो मेरी हिफाजत कर रहे हैं। हम सबकी हर साल बड़ा दिन, नया साल, जन्मदिन, हर चीज खुदा हमें देखने की तौफीक देता है। तीरगी में दिया दे दिया, अंधेरे में एक बहुत रोशनी दे दी, खुदा मसीह दे दिया, नया साल दे दिया। तीरगी में दे दिया है मुझे, दिया है मुझे एक नया दिया दे दिया, रोशनी दे दी। खुदा मसीह के बड़ा दिन आने से हमने रोशनी देखी, नई रोशनी,
और आज सुबह जब मैं उठा, उठते ही बहुत खुदा का शुक्र दिया, आज दिन हमारा खूबसूरत दिन है। पिछले पूरा हफ्ते बहुत कम सूरज निकला और आज सुबह उठते ही सूरज का मुंह भी देखा कि नए साल में खुदा ने हमें नया सूरज दिखाया, नया दिन दिखाया। और रात को भी मैं देख रहा था टीवी के, पहली बार पाकिस्तान में सारे शहरों में बहुत बहुत रोशनियां देखी, आतिशबाजी देखी, बड़ा मैं खुश हो रहा था। शुक्र है इतने सालों के बाद। नहीं तो नए साल की रात नौजवानों की और पुलिस की जो पकड़ दकड़ होती है वो इस साल नहीं हुई। लाहौर में, कराची में, ग्वादर में, मुल्तान में बहुत बहुत जगहों पर जो है वो रोशनियां देखी, आतिशबाजी देखी। अभी सुबह भी सारी दुनिया में बहुत सारे वो खुशियां तो नहीं कोरोना की वजह से, जैसे यूएसए में जो मैनहट्टन में होता है वो उन्होंने पाबंदी, लेकिन फिर भी लाइटिंग तो ज़रूर हुई, जो उन्होंने आतिशबाजी जहाँ जहाँ भी हो सका ज़रूर की। तो आज का शो मेरा जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। शो मेरा 711 था और जो शो का टॉपिक था साले 2021 की सच्ची और अच्छी बातें। और शो ही मेरा जो है वो तो 700 शो मुकम्मल हो चुके हैं सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से, और नए साल में भी 700 की गिनती ऊपर शुरू हो चुकी है। और खुदा तौफीक देगा कि साले 2022 तक भी अगर खुदा जिंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों के साथ ज़रूर हाजिर होता रहूँगा। मसले तो बहुत हैं, लेकिन अगर खुदा हिम्मत और ताकत देता है, और सर्दियों में ख़ास तौर पर बहुत मसले, गले का मसला, एलर्जी का मसला बहुत बहुत होता है। आप देखते हैं, आवाज से अंदाजा लगा ले, लेकिन पूरी तैयारी करता हूँ, गले को तैयार करता हूँ, गरारे करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, और बहुत सारे मसले करके फिर गले को तैयार करके सच्ची और अच्छी बातों के लिए आपके सामने शो के लिए। और आज का जो बाइबल मुकद्दस से हवाला था, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 40 से 43 आयत पढ़ूंगा। बस भीड़ में से बाज ने यह बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। खुदाम यीशु मसीह के मुतालिक बहुत सारे ख्यालात जो दड़ाए जा रहे हैं। बस भीड़ में से बास ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। और उन्होंने कहा ये मसीह है। बहुत सारों ने कहा कि ये वही मसीह है जिस मसीह ने खुदा के बेटे ने आना था, जिसके मतलब किताब हयात में लिखा है ये वही है। और बास ने कहा, क्या मसीह गलील से आएगा? ये मतलब वो तो जब पैदा तो बैतलहम में हुआ, फिर वो वहां से जो भी खुदा ने जैसे कहा फरिश्ते से उनको माँ बाप को कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि खतरा था हेरोदीस का जो, तो इस वजह से तो कहा गया क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा जहां का दाऊद है? क्योंकि पेशन गोई यही थी, और खुदा ने यही कि दाऊद की नस्ल से एक जो है वो पैदा होगा, यीशु मसीह पैदा होगा, जो कुल आलम को उनके गुनाहों से निजात देगा। बस लोगों में से इसके सबब से इख्तलाफ हो गया। ज़ाहिर बाज कहते थे मसीह है, बाज कहते थे नबी है, तो इस वाले से इख्तलाफ हो गया। लेकिन हम खुश नसीब है कि हमें कोई इख्तलाफ नहीं। हमारा पुख्ता ईमान है कि यीशु मसीह का जिसका हमने बड़ा दिन मनाया वो बैतलहम में ही पैदा हुआ, दाऊद की नस्ल से ही पैदा हुआ। और जो जो भी पैगाम दिए, जो भी गवाहियाँ दी गई, वो सच्ची और अच्छी है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का ये शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। खुदा आप सबको नए साल की खुशियाँ में, और रोज़ जो कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि बहुत बुरी तरह जो दूसरी कोई लहर है, दूसरी किस्म है, बहुत बुरी तरह जो लोगों को अपने घेरे में लिए है। बहुत सारे मेरी कम्युनिटी के लोग भी इसमें आ चुके हैं,
تو خدا باپ جی ملک پاکستان یو ایس اے ساری دنیا سے اس کرونا وائرس کو اس نئے سال کی خوشی میں اپنے بیٹے کے وسیلے سے اس کرونا وائرس کو ختم کر. جو بھی بیمار ہیں اس وجہ سے خدا باپ جی ان کو اپنے بیٹے کے وسیلے سے صحت و تندرستی عطا کر. یہ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی, آمین.